So I would like to welcome Nishant sir. Most of the part he preferred to converse that is in Hindi. Okay, that I want to tell you, and it is well thoughts that has to be flown through a mother language, nothing than that. First, I would like to welcome sir by a student can standing in after the bouquet to sir on behalf of an institute. So I would like to request Madhvi to give up on a bouquet to Alap, because from the last 2 days I am interacting with Alap, a wonderful personality to interact with, and we are coordinating, how we should go about. It was casually I have an approach in the mind that there was no holiday, and on Monday I thought I should take a program. But accidentally again there was Monday was a holiday, and then we have to postpone it for another day. Okay, so that's why we took it on the Tuesday. Let me give a brief introduction of the sir. Sir is the founder of Sampada and presently working as a founder curator of the Sampada Museum of Folk Heritage and Center for Art, Craft and Culture. He has done his graduation in 1979. He did his postgraduate in journalism in 1983. He was also a columnist in dailies like Samkali and Jansatta. From 1991 to 1993, in columns like Dabka, Spandan, Devi Putra, and was freelance writer for the daily Akila and monthly Ramakrishna Jyoti. He also did his PhD in Hawaii, street place of Saurashtra. Hawaii ko street place of Saurashtra Hawaii in 1999. His distinguished career includes major fields like participate in Asmita Samvad and International Heritage Seminar in 2012 at Ahmedabad. Exhibit the frames and plates on Buddhist bed in Gujarat, which noticed by Miss Hannah Baumann of UNESCO and others. He also prepared and presented in a national seminar on horse in visual art in 2011. During 2012 till date, he has curated and mounted as many as 42 exhibitions, mainly on the folk art and the crafts. His program series was telecast on Doordarshan on the folk culture and literature. His program and interviews from Akashvani Rajkot Kendra also delivered so many lectures in Chavani, literature, folk art and environment. This is I think a small introduction. And the way he expresses the art, the way he expresses his whole experience is very different. I experienced it, that's why I can say that, and I'm sure that you also will experience the same. Thank you. Thank you. हिंदी बोलिए इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो बात है वो अपनी मदर टंग में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना दूसरे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सत्यजीत रे शायद हिंदी में ज़्यादा मतलब इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेज बांग्ला के सिवा नहीं छोड़ा उन्होंने। एनीवे कल मिले सर वहाँ हमारे यहाँ JDC सेंटर में, आज हम आपके साथ हैं। थोड़ा लेट हुआ, हम सॉरी बोलते हैं आपको। एक्चुअली दिस इज आवर ऑफिसर इनफॉर्मल। हम चाहते हैं कि अभी आपके डायरेक्टर साहब की चैम्बर में बैठे थे, थोड़ी बात हुई
कि टेक्सटाइल का नॉलेज इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको इंफॉर्मेशन ले लीजिए, टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। तो हम ये कहने चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी काफ़ी है किसी भी एग्जिबिट्स या क्रिएशन के लिए? तो नहीं, उसके अलावा लिटरेचर, म्यूज़िक, फोकलोर, फोक हिस्ट्री और बैकग्राउंड काफ़ी कुछ होता है। तब हम परफेक्ट उसके अंदर अपना ये ध्यान लगा सकते हैं कि नहीं, दिस इज आवर क्रिएशन और दिस इज आवर रीजनल आइडेंटिटी, ये हमारा अपना है। तो कवि गुरु ने इसीलिए गाया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, कि देश की मिट्टी देश का जल, देश का वायु देश का फल, पुण्य हो हे भगवान। अगर ऐसे नहीं होते तो हमारे कोई भी मास्टर्स ले लीजिए आप, तो उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो खुद का जनपद, अपने जनपद का पूरा आइडेंटिटी आपको मिलेगा। हम आपको थोड़ा सा अपने बारे में तो सर ने बताया, ऐसा कुछ नहीं, हमारा एक छोटा सा म्यूजियम है, ये संपदा। तो संपदा ने अपना सौराष्ट्र रीजन का आइडेंटिटी दिया, हर एक का अपना आइडेंटिटी होता है। उड़ीसा ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तो एक अपना फ्लेवर होता है, अपना एक जनपद का मूड होता है, उनका अपना यूटेंसिल है, फिर अपना टेक्सटाइल है, वेपन है, अपना लिटरेचर है, अपना वॉल पेंटिंग है। आप कहीं भी ले लीजिए, किसी भी रीजन में ले लीजिए, तो हर एक का अपना एक मूड और आइडेंटिटी है। इससे आगे हम ले जाए तो कोई भी रीजन ले लीजिए आप, पूरा भारत का, तो एक दूसरे से बहुत नज़दीक मिलेगा। चाहे स्टेट का आइडेंटिटी अलग है, लेकिन जो पूरा फोक है, फोक हेरिटेज है अपना, तो बहुत ही नज़दीक होगा। वॉल पेंटिंग ले लीजिए, टेक्सटाइल लीजिए, शायद आइडेंटिटी अलग अलग नाम में होगी, लेकिन होगा तो बहुत नज़दीक उनका एक डिज़ाइन और सब कुछ आपको मिलेगा। तो हमने संपदा में अपना जो सौराष्ट्र रीजन है, कच्छ और सौराष्ट्र, वो गुजरात के पार्ट में, आप शायद कच्छ में आए होंगे, काफ़ी कुछ टेक्सटाइल का काम हो रहा है, अहमदाबाद में भी काफ़ी कुछ है। अभी हम बोल रहे हैं कि आपका स्टूडेंट को सबको एक बार तो टेलीकॉम म्यूजियम देखना है आपको जीवन में, कभी भी आप एक बार टेलीकॉम म्यूजियम देखिए कि क्या हमारा ये पूरा हिस्ट्री है टेक्सटाइल का, इतने रीच आपको मिलेगा वहाँ सब ये। तो हम आपको कहते हैं अहमदाबाद जब भी आइए आप टेक्सटाइल म्यूजियम देखिए। तो ये हमारा एक है। तो हमने संपदा में अपना थोड़ा बहुत कलेक्शन किया है, जिसमें वेपन है, यूटेंसिल है, और ज़्यादातर हमारे संपदा में एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा है। मोर देन 1000 पीसेस है हमारे पास, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल रीच कलेक्शन है वो किया है। आप थोड़े बहुत संपदा के देखेंगे इंटीरियर कैसा है, ये जस्ट तो ये संपदा है। आप लोगो देखेंगे तो ये तर्जनी से लिखा गया, आपका जो उंगली होता है तर्जनी से लिखा जाता है दीवार पर। ऐसे और कुछ से हाथ से ही लिखते थे, हमारे ट्रेडिशनल जो सिंबल है अपने गांव में देखे होंगे, तो ये उंगली का तर्जनी पवित्र मानी जाती है, तर्जनी से ये होता है आप देखिए। और ये है हमारा डोगरी, तो ये डोगरी बॉक्स से काठी कम्युनिटी से है, ये रिलेटेड काठी कम्युनिटी से है। तो काठी कम्युनिटी ये पीतल का होता है, फिर कोई फूल पत्ती बनाई, घोड़ा अंदर बनाया, कोई हाथी बनाया, उनको लगे कि नहीं मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, तो नियर वो ध्यान के करीब करीब हो जाती थी। कंसंट्रेशन, जीवन का पूरा कंसंट्रेशन क्रिएशन के साथ था, इसीलिए उनको ये दिया जाता था कि वो इन फ्यूचर वो लड़की जब जीवन में आएगी, गृहस्थ आश्रम, शादी करने के बाद ससुराल जाएगी, तो वो स्टेबल रहेगी, उनकी मानसिकता है वो खूब बैलेंस रहेगी, वो शॉर्ट टेम्पर नहीं रहेगी, छोटी छोटी बातों में चिढ़ नहीं जाएगी, मैं तो ये चली, मैं वो करूंगी, कहीं डाइवोर्स, सुसाइड, ये जो सोसाइटी में जो हो रही है प्रॉब्लम, तो उस जमाने में इतना उनका फोर्स नहीं था, स्टेबल थी। कोई भी परिस्थिति सामने आई, कोई भी अगर चैलेंज आया लाइफ में, तो वो सॉल्व कर लेती थी, इसीलिए कि उनका जो आगे का इंटर्नशिप है वो 2 साल 3 साल तक एक क्रिएशन में गया, उनका कंसंट्रेशन वो किस
चैलेंज को एक्सेप्ट कर ली थी। ये ऐसे कोई डेकोरेशन की चीज नहीं थी, घर सजाने के लिए नहीं थी और तो टाइम पास नहीं था, उनके पीछे जो है भावना यही रही है। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा सबसे पवित्र है गणेश स्थापन। तो गणेश स्थापन कब होता था कि कभी भी लग्न है, शादी है, ब्याह है, तो उस वक्त ये जो है गणेश स्थापन से शुरुआत होती थी, या यज्ञोपवीत है। तो ऐसे ये फॉर्म देख लीजिए आप, पूरा का पूरा ये ब्लॉक प्रिंट नहीं, ये कोई किसी ने ड्राइंग नहीं किया, खुद की जो औरत, गांव की औरत है, उसी ने ड्रॉ किया। आप देखिए उनका फॉर्म देख लीजिए, ये गणेश स्थापन है। फर्स्ट ऐसे नहीं, स्पीकर एक ही नहीं चलेगा। हाँ, स्पीकर चलेगा, मुझे माइक नहीं चाहिए। स्पीकर अगर थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा हमारा छोटा सा, ये एक स्पीकर उसका नहीं चलेगा। एक छोटा सा स्पीकर उनको तो ये समुदाय के बारे में देखा। हम आ गए हैं अभी गणेश स्थापन से। गणेश जी से हमारा हर एक सुप्रसन्न तैयारी होती है। गणेश की जो पूजा है वो हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अलग अलग रूप से होती है। महाराष्ट्र में तो काफी कुछ हुआ है, और ये स्वराज मेरा हक है, तिलक जी ने शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। तो हर जगह आप देखिए तो गणेश जी का एक अपना वजूद है, और गणेश जी का काफी कुछ गीत भी हमारे फोकलोर में है। तो गणेश के सिवा कोई भी, इसलिए हम गणेश को बिठाएंगे तो हम आगे ठीक से हमसे बात कर सकेंगे, इसलिए गणेश को बिठाना जरूरी है। एक स्पीकर गणेश जी से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको कुछ सुनाने चाह रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड हमने जो रिकॉर्ड किया था वॉइस फोकलोर का, वो सुनाने चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। तो गणेश से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा पूरा सौराष्ट्र का आइडेंटिटी है। इस तरह से हर घर में, जो हमने बताया कि बेटी सयानी हो जाती थी, तब ये चीजें उनको धागे, मोती, बीट सब ये देके, और ये हर एक घर में होता था, खास करके सौराष्ट्र और कच्छ में। इसी तरह हर घर सजा हुआ था। उनके जो आप देख रहे हैं, आप उनका पहनावा वो सब एम्ब्रॉयडरी से लगा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, ये वॉल पीस हमारा, जिसे गाथली बोलते हैं, चौरस होता है उसे चाकरा बोलते हैं, ये गाथली। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी है, और ये संपदा का अपना एक कलेक्शन है। ये धानियाँ है। धानियाँ आप जानते हैं, पहले के जमाने में ये जैसे घर में आप सुविधा है, अभी बेडरूम है, कोई ना कोई आपका अलग अलग हर एक के रूम होते, उस वक्त ऐसा नहीं था। चारपाई थी, चारपाई शाम को घर में लाते थे, गद्दी, गद्दियाँ और सब अपना दूसरा जो ओढ़ने बिछाने का वो सब रखते थे, सुबह में ले लेते थे। और घर में एक था दामचिया जैसे बोलते हैं, स्टैंड जैसा था, तो उस पर वो रख के ये कवर उनका ऊपर लगाने का, ताकि वो सब पीछे रह जाए और ये आगे। तो ये धानियाँ आप उनका तारीफ देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी देखिए। और एक चीज आप सब में मार्क करेंगे कि कोई भी एम्ब्रॉयडरी है तो उसमें आप एनवायरनमेंट तो जरूर हो। एनवायरनमेंट, पर्यावरण वो पढ़े नहीं थे, उनको सब्जेक्ट के हिसाब से सिखाया नहीं गया था। फिर भी आप देखिए कहीं ना कहीं सिंबलाइज, फूल पत्ती है, हाथी है, घोड़ा है, पोपट है, मोर है, और एक वृक्ष आप देख रहे हैं, तो वो वृक्ष है पारिजात का। हमारा सौराष्ट्र में द्वारिका और कृष्ण जी का एक गहरा संबंध है। द्वारिका हमारा सौराष्ट्र का लास्ट शीर्ष शोर पर है वहाँ। तो ये पारिजात स्वर्ग से कृष्ण जी लाए थे, तो सौराष्ट्र के ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी में आपको ये पारिजात का वृक्ष दिखाई देगा। नेक्स्ट, ये चाकरा, ये वॉल पीस है।
शादी ब्याह में सब जगह ये रखते थे, फिर कुछ पुराने होते थे तो वो पर्दे में रखते थे। अच्छा, आप इस एक चीज मार्क करेंगे कि कुछ में आप फिगर देखेंगे, कुछ में आप ज्योमेट्रिकल आप ये देख रहे हैं। तो हमारी कुछ कम्युनिटी है ईरान से वाया सिंध और कच्छ होके हमारे सौराष्ट्र में स्टेबल हो गई। उनमें काठी कम्युनिटी है, बोरीचा है और कुछ सिंधी लोग हैं। तो उनके क्रिएशन में आप फिगर कम देखेंगे, फिगरेटिव नहीं है उसमें, बैल घोड़ा ये नहीं देखेंगे आप, उसमें ज़्यादातर ये ज्योमेट्रिकल देखेंगे। तो ये सब आप देखेंगे ईरान का इन्फ्लुएंस है। बीच बीच में जो आप थर्ड लेयर में देख रहे हैं पूरा ज्योमेट्रिकल। नेक्स्ट, ये आ गया हमारा बैल का श्रृंगार फर्स्ट। तो जो बैल के हॉर्न होते हैं सर पर, उसे सिंगड़िया बोलते हैं, जिसे हॉर्न ऐसे उसी तरह उनको पहनाए जाते हैं। तो हमने बताया कि उसको हम पशु नहीं मानते थे। आज भी आप सौराष्ट्र में या तो किसी भी दूसरे जनपद में, उड़ीसा के जनपद में कई इकोनॉमी से जुड़ी चीज़ें, गाय भैंस बैल ऊँट कैमल, तो ये चीज़ बहुत ही अपने इमोशन रखती है, उसको सजाते हैं। तो अगर किसी का बैल मर गया तो उसको आश्वासन देने चाहते थे, अरे भाई आपका बैल मर गया। आपने शायद मुंशी प्रेमचंद की कहानी हीरामन पढ़ी हो, तो इसमें गोदान में भी काफ़ी कुछ गाय का महत्व दिया गया है। क्या पशुओं से कितना लगाव है। इंडिविजुअल गाय और बैल पर जब कहानी लिखी जाती थी तो एक अपने फैमिली मेंबर की तरह उसको, घोड़े का काफ़ी महत्व था। तब कहाँ ये मोटरसाइकिल ये था, तो उस वक्त पशुओं से एक लगाव था और वो इकोनॉमी से जुड़ी चीज़ें, वैसे भी इमोशन भी थे उनके। नेक्स्ट, हाँ, ये ऊपर का सिंह हो गया, फिर मुंह को भी सजाना है, तो ये मखियाड़ा बोलते हैं, इस तरह से ये करते थे। नेक्स्ट, हाँ, ये शाहरुख खान और गोविंदा आ रहे हमारे, सजे धजे, उनकी जैसे शादी हो रही है दोनों की। कितने आप देख रहे हैं, कितने ये आप सिंह, ये बेलावटी, ये मखियाड़ा, फिर गोइडा, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि आप देख लीजिए। तो शादी के वक्त इस तरह से, या तो कोई धार्मिक रिलीजियस शोभा यात्रा है, तो उस वक्त आज भी हमारे यहाँ इस तरह से बैल को सजाया जाता है। आप पूरा देख लीजिए, पूरा ऊपर का भी होता है, पीछे जो पीठ होती है ना उसे झूल बोलते हैं, इसमें पूरा नहीं है तो उसे झूल होती है। आपकी टवेरा और ओढ़ी को नहीं पहना सकते हैं, है ना, गाड़ी को इस तरह से आप, क्योंकि इमोशन है, मशीन है एक, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारे एग्जीबिशन होते हैं जो टेक्सटाइल से, अगर आप चाहेंगे तो इन फ्यूचर ये सब चीज़ें हम यहाँ ला के आपको दिखाएंगे। कभी हमारे जेडीसी के साथ कोई प्रोग्राम हो या चाहे इंडिविजुअल होगा, तो ये 1000 जैसे अलग अलग सब एग्जीबिशन आप जो कुछ देख रहे हैं उसमें बीच वाला है पूरा श्रृंगार है, आप ये देखिए। और ये चीज़ है उसको पहनाने के लिए, जो नीचे वाला देख रहे हैं ना बर्थ बेल्ट को, उसे झूल बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एक कच्छ में मुथवा, वो एक कम्युनिटी है, वो सिंध से आई है। तो ये डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट है कलर सेंस। और ये हमने जो सौराष्ट्र का, ये तो किसी भी रीजन का लीजिए तो सबका सब एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल उसके कलर्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। उनका एक साइकोलॉजी होता है कि कौन सी कम्युनिटी से है ये और क्या सोच है उनकी, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप देख लीजिए, जो संघर्ष में ज़्यादा काम करते, पूरा श्रम करते हैं, तो उनके क्रिएशन में इतनी फाइन वर्क नहीं होंगे। और जिसके पास वक्त है, जो रीच है, उसकी औरत जो बनाती है उसमें एक फाइन, जैसे राजस्थान में राजपूत लोगों का ले लीजिए, तो उतना वहाँ दूसरे कम्युनिटी का नहीं होगा। तो उनके पास जिस परंपरा के पास अपना वक्त है, अपनी एक सोच है, तो क्रिएशन में भी असर रहेगा। तो एक तो फाइन वर्क नहीं होगा, जो मेहनत कश लोग हैं और हैंड टू माउथ है, तो उनके मटेरियल पर भी इफेक्ट रहेगा। आपका जो पीपली में जो कटाव का पैच वर्क होता है, तो वो बेसिकली क्या था कि वो पुराने कपड़ों से बनाया जाता था, नहीं कि नए कपड़े काट के। तो घर में पुराने कपड़े, उस डिज़ाइन में कहीं मोर है, कहीं फूल पड़ा है, कोई और डिज़ाइन है, तो उतना काट के उसको चिपका के फिर वो वंदनवार या तो वॉल पीस कुछ बना लेते थे। उसके पास धागा भी नहीं था, न तो बीड था, न तो ये हीर का मतलब ये सिल्क के धागे कुछ नहीं थे। जो भी सामने है उसे क्रिएशन बना लिया। गर्मी तो होती होगी, तो ये
मुथुआ कम्युनिटी का ये भी वो आपका ये कवर अप है दामचिया का कहानियाँ बोलते हैं। इसे नेक्स्ट ये पिपली के करीब हो गए हम, ये सौराष्ट्र में होता है, ये नीचे की गुदड़ी नीचे का निशान है। नेक्स्ट हाँ ये बीजवर का मारा होते थे। आप कैमल ले लीजिए तो आप देखिए कैमल आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो ये हमारे कच्छ सिंध से मिला हुआ बाउंड्री है, तो ऊँट का जहाँ उपयोग ज़्यादा होता है तो वहाँ कैमल रिफ्लेक्ट होगा, घोड़ा का जहाँ यूज ज़्यादा होता है तो हॉर्स रिफ्लेक्ट होगा। और ना ही इसके पीछे हमारी भावना रही कि सिर्फ एग्जीबिट करके वो ले रहे जाते थे, उनके पीछे अपना एक लोकगीत थे, लोक वार्ताएँ थी, लोक कथाएँ थी, तो ये सब मिला के उनका रिफ्लेक्शन अपने क्रिएशन में होता है। नेक्स्ट ये घोड़े की गुटी है, घोड़ा ऊपर को निशान है, ये काठी कम्युनिटी का है। आप इनका कलर्स देख लीजिए, पूरे के पूरे ब्लैक, मरून और ब्लू। इनकी मानसिकता ये काठी कम्युनिटी में क्या होता है कि काफ़ी कुछ ताऊ पेंच और पूरा का पूरा भेद भरम और काफ़ी थोड़ा सा क्रिमिनल का भी रेस, तो वो जो मानसिकता है घर की और उसके स्वभाव पर आएगा और वो रिफ्लेक्ट उसके क्रिएशन में भी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ये हुआ हमारा एक सौराष्ट्र का पूरा आइडेंटिटी, आपने शायद देखा भी होगा, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो ये माता जी की पछेड़ी है, तो आजकल वो हाथ से ही बनाई जाती थी, अब तो ब्लॉक प्रिंट भी होने लगा है। तो ये जब नवरात्रि या तो माता जी का आगमन जब जब होता था तब देवी माँ को ये पीछे बैक साइड में और हर एक घर में, जैसे उड़ीसा का आपका पट चित्र है, तो उसी तरह ये गुजरात का देवी माँ का पिछवाई है जो पीछे रहती है। राजस्थान में जाएंगे तो किशन जी की अलग अलग तरह की पिछवाई होती है, श्रीनाथ जी में सुबह में अलग होता है, मंगला आरती में होता है, फिर भोग में अलग होता है, फिर शयन में अलग होता है, जब जैसा मौका है हर एक में है। किसी भी स्टेट में लेते हैं तो उनका क्लोथ रिचुअल्स बैकग्राउंड है, तो रिचुअल टेक्सटाइल एक अपने आप में अलग होता है। नेक्स्ट ये बाबूजी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें एक कहानी है, पूरा नरेशन है, पूरा का पूरा नरेशन है, एक ये है। अच्छा, इसके पीछे भी आप देख लीजिए टेक्सटाइल क्या मायने रखती है। आप बंगाल का कांथा पेंटिंग ले लीजिए तो पूरा कॉन्टेम्पररी आपको आज भी करता है। जैसे कि इंदिरा जी का डेथ हुआ तो उन्होंने लोक कलाकारों ने अपना पूरा कहानी उसमें कर दिया पेंटिंग्स में, और पूरा का पूरा वो नरेट करती है, एक औरत होती है वो गाती रहती है, लिरिक्स गाती है और उसके साथ वो नरेशन करते हैं। उसी तरह पाबूजी राव फॉर्ट है, उसमें पाबूजी एक बड़े वीर पुरुष हुए और देवलाई जो चारण कम्युनिटी से थी, तो देवलाई की गाय बचाने के लिए वो गए और वो शहीद वीर गति को प्राप्त हो गए। तो टेक्सटाइल में क्या क्या नहीं है, आप उस एंगल से कभी देखा आपने, इमोशन उसमें शेयर थी, उसमें गीत है। टेक्सटाइल में हम जो आज मिस कर रहे हैं वो तो एक स्पीकर होता था, हम सुनाते टेक्सटाइल क्या है, हमारे पास तो थोड़ा खैर कोई बात नहीं। तो ये पाबूजी राव फॉर्ट है, जैसे आप देख रहे हैं पूरा राजस्थान का एक आइडेंटिटी है, इसमें वीर पूषा हमारे सौराष्ट्र का एक स्वभाव है, हमारा एक लिरिक्स है कि धर जाता धर्म पड़ता क्रिया पड़ता था टाणा मोतरा एवं कौन रंग और कौन राव। ये जो तीन अवसर जीवन में आते हैं, धर जाता जब धरा जाती है, जब जन्मभूमि पर कोई वार करता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गई ऐसी, तो धरा पर जो वार करता है वो वक्त धर जाता धर्म पलटता, जब धर्म पर अपने रिलीजियस पर कोई बाहर के कोई अटैक कर, संस्कृति पर अपना पूरा एक अखंड जो अपना देश है उस पर कोई धावा बोलता है वो समा, और त्रिया पड़ता था, और जब औरतों पर कोई एक बुरा वक्त आता है या तो कोई अपनी अस्मिता के साथ जुड़ा होता है जो मायने रखता है, बहन बेटियों की इज्जत पर कोई, तो ये तीनों अवसर ऐसे है, तब कोई पूछने नहीं चाहता कि मैं इनके सामना करूं, ये हमारी परंपरा रही। तो रिफ्लेक्शन होता था अपनी टेक्सटाइल पर। ये पाबूजी राव फॉर्ट वो गांव-गांव में आज भी भोपाल लोग वो मसाल रख के वो गाते हैं और वो शहीदी की बताते हैं, ताकि हम वो संस्कार की परंपरा बनाए रखें। इस टेक्सटाइल के जरिए, माता जी की पछेड़ी के जरिए, अपना उड़ीसा के फड़ के जरिए, आप गीत गोविंद का ले लीजिए, कोई भी फड़, आप पूरा का पूरा जयदेव का, जगन्नाथ महाप्रभु का पूरा नरेशन दिया गया है। तो हिस्ट्री भी है, डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा का पूरा उसके पीछे जो आप देख रहे हैं कैलीग्राफी है, तो ऐसे ही
कुछ कह रहे हैं, ये हिस्ट्री संजोए रहे। एक स्टेज का पीस, एक वॉल पीस जैसे हम समझते हैं, डेकोरेशन पीस समझते हैं, वो चीज़ नहीं थी। अपने संस्कृति का रक्षा करने के पीछे ये टेक्सटाइल का बहुत बड़ी एक रहा है। नेक्स्ट, खास करके तो हमने इसलिए बताया है कि हमारा हॉर्स इन विजुअल आर्ट, हॉर्स का जो विजुअल में कहाँ हॉर्स नहीं था। हमारा सौराष्ट्र में तो हॉर्स के बारे में इतनी सारी कहानियाँ हैं, हॉर्स से लेकर पूरे भारत में, ऐसे ही नहीं हम नहीं कह सकते कि सौराष्ट्र में, लेकिन हॉर्स अपना संस्कृति का, आप देखिए स्टेशन में उतरिए आप भुवनेश्वर तो सामने सम्राट अशोक घोड़े पर सवार है, आप देखते गरीब, आप झांसी में जाइए तो रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार, आप उदयपुर जाइए तो चेतक का तो पूरा मेमोरियल अपना एक बन रहा है। तो कितनी ताकत है तो उनको सजाने, क्योंकि वो हमारी अस्मिता के साथ जुड़ा है। तो एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल ये एक अलग नहीं कर सकते। सब जो लोक फोक हेरिटेज है, लोक परंपरा है, लोक वृत्त है, तो सब अपने हाथ से जुड़ा। आप देखिए कितने घोड़े हो रहे हैं इसमें, ये आप देख लीजिए। तो हमारा हॉर्स इन विजुअल आर्ट था, तो उसके लिए हमने बाबूजीराव फोर्ट का ये दिया था रेफरेंस। नेक्स्ट, ये भी डिफरेंट है, उसमें एक विजुअल में उस तरह से अलग अलग कारीगर का एक रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट, हाँ, अब घोड़े की बात करें, टॉयज में भी था, वो भी पेपर मासे में, फिर कपड़े से भी बनाया जाता था। तो ये घोड़ा हमारे सौराष्ट्र में आज भी है, उसके ऊपर कवरिंग किया हुआ क्लोथ का है। ऐसे चीजें लाके जो बेचने आती थी, तो अपनी स्ट्रीट में लंबा सा वो एक आवाज देती थी, वो भी अपने आप में एक वो था, एक लहजा था। तो वो जब आती थी तो वो भीख मंगे नहीं थे, नॉट बेगर, वो भीख मंगे नहीं थे, लेकिन उनको स्वमान से जीना था, अपनी क्राफ्ट पर वो डिपेंड थे, क्योंकि उसको मुफ्त का नहीं चाहिए था। आपको बच्चे को खुश रखेगा कि ये बच्चे के लिए ले जाओ, ये खिलौना, वो बोलेगी कि नहीं हमारे, फिर भी वो देती थी, आप देखो मुफ्त का नहीं चाहिए, उसके पीछे की जो भावना देखिए, वो मुफ्त नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ वो देके गेहूँ, आटा, चावल, दाल ये लेती थी। एक चैनल थी समाज की। आज तक, आज भी छोटे छोटे गांव में जहाँ कैश नहीं होता है, तो वो आती है लेने के लिए, तो कोई अनाज भर के छोटा सा उम्र के बच्चा चला, घर वाले पूछते नहीं गए तू क्या लेके गया, तो उसके पीछे हमारे टेक्सटाइल या तो कुछ भी क्राफ्ट ले लीजिए, उसके पीछे की भावना की, वो भी आप थोड़ा सा एक ध्यान। नेक्स्ट, हाँ, ये आए गए घोड़ा। तो पूरे विश्व में इंडिविजुअल घोड़े का मंदिर नहीं होता है कहीं भी। तो रामदेव जी का जो घोड़ा है, रामदेव जी का ये जो मंदिर होगा कहीं भी, तो वहाँ इंडिविजुअल आप घोड़े की पूजा की जाती है। ये परंपरा हमारी रही है। तो ये घोड़ा देखिए आप, वो भी हमारा राजस्थान और गुजरात का काफ़ी कुछ नज़दीकी संबंध है। कुछ कम्युनिटी तो ऐसे हैं जो एक दूसरे में आज भी शादी ब्याह में वो करते, तो ये घोड़े वहाँ सौराष्ट्र में बनते। नेक्स्ट, हाँ, ये माता जी की पछड़ी में जो घोड़ा दिया गया था, ये राई का इसे बोलते हैं, वो घोड़ा उसी से। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारे एक कमांगर कम्युनिटी थी कच्छ में। आप कच्छ में रहिए, वहाँ शायद आपको किसी कमांगर कम्युनिटी हुआ करती थी। बेसिकली उनका काम था जो तलवार और ये खंजर, तो उनके म्यान बनाने का था। तो म्यान काफ़ी कुछ उसमें लेदर पर वो पेंटिंग्स किया करते थे। तो बाकी का समय रहा तो दीवारों पर, मंदिरों पर वो पेंटिंग्स किया करते थे। कमांगर एक कम्युनिटी थी, और दुख की बात है एक भी कमांगर हमारे कच्छ में नहीं रहा। तो ये कमांगर शैली के घोड़े हैं, और जब रामायण ये होता है तो अश्वमेध का घोड़ा होता है, आमने सामने दो घोड़े रहते हैं। तो ये घोड़ा कमांगर शैली का है। नेक्स्ट, हाँ, एक देखिए, एक चीज हमसे छूट जाती है तो क्या क्या हम खो देते हैं। हमारा जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर को नहीं पहचाने, हमारा जो अलग शिप ब्रेकिंग का एक बड़ा है, शिप ब्रेकिंग जहाँ सबसे बड़ा होता है पूरे भारत में, तो वो नज़दीकी गांव है, खरक कम्युनिटी है। आज उसके वॉल पेंटिंग ये नहीं रहे, ये तो प्रिजर्व किए गए थे, वहीं से ये हमने लिए। तो ये खरक होता है, अभ्रंश क्षत्रप से लिया गया है। क्षत्रप लोग थे जो गुप्त कालीन, आपका जो बुद्धिस्ट बेल्ट पूरा यहाँ है, जैसे अशोका के साथ है, उसी तरह वहाँ वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और नालंदा, ये चार हमारे महाविश्वविद्यालय हुआ करते थे। उसमें ये वल्लभी था, तो वल्लभी तो नष्ट हो गया। क्षत्रप लोग उससे जुड़े हुए थे, वो सेना नायक हुआ करते थे क्षत्रप। तो उस कम्युनिटी में वॉल पर ये पेंटिंग्स किए जाते थे। तो आज वो अभी नहीं रहे, तो उसको भी करना ना, तो आप देखते हैं एम्ब्रॉयडरी करेंगे ना, तो ये फॉर्म आज खत्म हो गए खरक कम्युनिटी का। नेक्स्ट,
ये वही कमांडरी का सामने वाला घोड़ा है। नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए आप, ये अपने आप में एक मॉन्यूमेंट से आप एक भी चित्र या तो भिन्न चित्र लगे तो ये कल्पना चित्र नहीं है। जब भी आपको लगे कि ये पंख वाला घोड़ा कैसे आ गया, तो बेसिकली यहाँ डाबा बोलते हैं, यहाँ पंख हुआ करता था। आज भी किसी घोड़े को देखे तो यहाँ दो दाग हो गए, यहाँ दो, वहाँ वो उसका बाल नहीं होते हैं। वो पूरा का पूरा उस जमाने से जब उनका ये सर्जरी किया गया था। ये कोई कहानियां नहीं, ये फोकलोर नहीं, ये सत्य है। भगवान शालिहोत्र ने ये सर्जरी की गई थी। पंख वाले घोड़े आकाशगामी थे, धरती का वो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने सर्जरी करके पूरे घोड़े की नस्ल को यहाँ दौड़ की कर दी। तो उसका ये नमूना आज भी वहाँ की दीवारों पर लगाया जाता है कि घोड़े कहाँ किस तरह से हमारे जीवन से जुड़े। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमारे सुख के लिए उन्होंने अपने पंख गंवाए। तो ये बेसिकली आर्ट से जुड़ी चीज नहीं है, हमारी हिस्ट्री के साथ तो इस तरह से हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये भी वो कमांडरी शैली का नया नमूना है, पुराना है। नेक्स्ट, हाँ ये खरब कम्युनिटी का हाथी है। नेक्स्ट, हाँ ये एक माइथोलॉजिकल है। श्रीमद् भागवत में यक्ष, एक यक्षगान भी होता है बंगाल में, हाँ यक्षगान भी होता है। उसी तरह यक्ष एक देवता स्वरूप जो देव ज्ञान की मानी जाती है। यक्ष तो कच्छ में जखो है, जखो बंदर बोलते हैं। य का ज होता है हमारे सौराष्ट्र में, य का ज बोलते हैं। तो ये जखो बंदर है। तो जखो के अंदर ये घोड़े हैं। तो जब मन्नत मानते हैं तो उसको एक पत्थर का घोड़ा लेके बाहर रख देते हैं। ये जखो के घोड़े। नेक्स्ट, हाँ ये आप देख लीजिए। तो पूरे सौराष्ट्र में जाएंगे, कच्छ में जाएंगे, गुजरात में कम है, सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत ज्यादा है। ये मेमोरियल स्टोन है। आप देखेंगे उनके पीछे, जैसे बाबूजीरा फॉल में आप देखते हैं कि वीर पुरुष अपनी गाय बचाने के लिए, अपना देश की रक्षा, वो ब्राह्मण प्रतिपाल था राजा, तो वो अपना आदर्श के लिए मर गए। उसी तरह हर गाँव में कोई ना कोई घटना से जुड़ी चीज, लोक वार्ता, लोक कथाएं, तो वो मेमोरियल स्टोन, फिर उनकी याद में एक पत्थर रखा जाता है और नीचे पूरा का पूरा उसका लिखा हुआ कुरेदा हुआ पत्थर में होता है कि 100 सेंचुरी में मरे और इसी कारण मरे, उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, जी हाँ तो वो मूड चला। अब नेक्स्ट लेते हैं, हाँ वो सुनाएंगे हम, लेकिन अभी जो वो सेक्शन था वो चला। तो ये हमारे दीवार पर जो मानना बोलते हैं वो है। नेक्स्ट, हाँ तो देखिए जीवन में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट था। अभी हम आपके राय साहब से बोल रहे हैं, साहब से, कि जब तक आपको बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिला कि हमने पहले बताया साईं इतना दीजिए झामे कुटुंब समाए, तो उसी तरह हमारे यहाँ दूज होती थी। आकाश में दूज का एक महत्व होता है। तो दूज होती थी तो उस दिन मांगती थी औरत, घर की औरत के हे बीज मावड़ी चूल्हे तावड़ी बे बढ़त ने गावड़ी। माता को प्रणाम करते, हे बीज मावड़ी चूल्हे तावड़ी बे बढ़त ने गावड़ी। हमारा जो चूल्हा है, जो करते हम रसोई पकाते, वहाँ हमारी तवी हमेशा रहे। और दो बढ़त ने एक गावड़ी, 2 बैल दे दीजिए और एक गाय दीजिए, इनफ, दैट इज इनफ। हमारे जीवन को टिकाने सात्विक फूड था। हाँ ये फास्ट फूड, ये हॉट डॉग, ये वाली चीज लीजिए, सब फास्ट फूड। सत्व जुड़ा है, दूध दही, तो आपका माइंड भी ठंडा रहेगा, आपकी मेधा बढ़ती है। घी खाने से, दूध खाने से, दही खाने से मेधा बढ़ती है। तो वो शॉर्ट टेम्पर नहीं होते। जितना आपका फूड है तो उनका फूड ले लीजिए आप लोक जीवन का। तब भी आप लेक्चर देते रहे कि कितना उनके पीछे उनकी भावना थी, कोई भव्यता नहीं थी, सादगी थी, लेकिन सादगी के पीछे एक पूरा का पूरा पुरखों का एक था। इसमें एक भी चीज लीजिए, नित्य में हमने कई बार कहते हैं कि जब तक आपको पता नहीं है कि फेंसिंग किस लिए बनाई गई है, जब तक फेंसिंग किस लिए नहीं बनाई गई है तो उसको निकालने की जल्दबाजी मत कीजिए। ये हमारी परंपरा। हमने कहा कि ऑर्थोडॉक्स पुराने लोग, लेकिन उनको समझे कि ये देश काल शब्द आता है। आयुर्वेद में बार बार देश काल शब्द आता है कि आदमी का रंग से कैसा है। यहाँ हमने देखा कि बहन और माताएं, ये ऊपर का जैसा हमारा पहनावा है गुजरात सौराष्ट्र में, तो किसी को ब्लाउज का, तो साड़ी ऐसे लगती है रिस्पेक्टेबल। तो एक गर्मी का एक मुल्क है, देश काल के मुताबिक हो रहे थे। और पुरुष लोग ज्यादातर गांव में ऊपर वाले, क्योंकि गर्मी है। अगर देश काल के मुझे उन्होंने ये टाई शूटेड बूटेड हो गए तो परिस्थिति क्या होगी। आपके दाऊद के सूट पहने, फिर मुझे तो सूट पहनता ही नहीं। तो वो
क्या होगा अगर देश काल के मुजब नहीं रहेगा, आपका टैक्स स्टैंड का डिजाइन नहीं हुआ देश काल के मुजब, तो वो विपरीत होगा। स्किन डिसीज आए कहाँ से आए स्किन डिसीज इस देश में? तो जहाँ जो मुल्क था उसी तरह उनका टैक्स स्टैंड था, उनके मुल्क उनके प्रदेश की आबोहवा के मुजब ये बनाए थे, उसके मुताबिक उसका टैक्सेस भी बनाया जाता था, उसके पीछे भावना रही। समझे अगर हम बोलते हैं कि ये निकम्मा है, ये ऑथोरिटी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि अपने जो सिंबल है, सिंबल के पीछे भी भावना है, ये चल रही है कि जहाँ ये दूध दही मंथन किया जाता है। आप लोगों के बर्तन देख लीजिए, हम कुछ एडिशनल लाए बर्तन, मिट्टी के बर्तन, आप उनका देख लीजिए। हमने अभी एक बहन के साथ ये कॉपर का कांसे का आप बना रहे थे, वो देखिए बर्तन के पीछे भावना देखिए। कांसे का बर्तन यूटेंसिल, आप धातु पात्र, तो क्या हम बताएं आपको धातु पात्र के पीछे क्या है? हम एक आपको छोटा सा एक कहानी ये बताते कि गांव में जब शादी होती है, हमारे बहन बेटी होती है, तो उसको ले जाते हैं छोटे गांव से बड़े गांव में, तो वहाँ से उनका जो बेसिक लेना है, परचेज करना है, तो उनके साथ गई, वो बैठी यूटेंसिल जो कंसारा बोलते हैं, गाँव में कंसारा बोलते हैं, तो कंसारा के यहाँ गई और उनको कहा कि आपको जो जो चाहिए ले लो। तो उन्होंने कुछ बर्तन प्याले, ऊपर का वो गुजारा, जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी, कांसे की थाली, ये वो निकाला। फिर वो तो इलेक्ट्रिक वाली बात नहीं थी नाम लिखवाने का, उस पर नाम लिखवाने पड़ते, नहीं तो खो जाएगा कहीं ना कहीं, वो बदल जाएगा। पहले ये सब मंडप सर्विस नहीं थी, एक दूसरे को मांग के अपना ये जो इवेंट है वो अपना प्रसंग निकाल देते थे। तो उस कंसारे ने उस बेटी से पूछा, बेटी आप क्या नाम लिखवाओगे इसमें? फिर हम जाते हैं घर पर, उस जमाने में लोच बोझ नहीं था, सब एक दूसरे का अंदरूनी संबंध, घर पर उनके व्यापारी के घर पे खाना खा लेते थे। तो 2 बार पूछा, बेटे आप बताओ तो जल्दी शंकर, क्योंकि देर लगेगी, नाम लिखवाने में बहुत देर लगेगी, आप नाम बताओ। तो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो बोले पिताजी को पूछना है, भाई को पूछना है, किससे आप कुछ पूछना है? तो बोले नहीं मामा, उससे मामा बोलते नजदीकी होते, तो बोले मामा किसी के नाम नहीं लिखवाने, वो आसान ऐसे ही रहने दे, यूटेंसिल ऐसे ही रख लेते। तो उनको लगा कि एक काठी कम्युनिटी की समझदार कम्युनिटी की बेटी है, इससे मना नहीं करती। तो उन्होंने पूछा ठीक है चलो हम तो जाके खाना खा लेते, लेकिन बेटी मुझे बताओ कि नाम क्यों नहीं लिखवाना है इसका? तो ये जब साफ करते हैं ना यूटेंसिल, तब मिट्टी या तो कुछ मिट्टी एक सद्भाव रहता था, एक चीज को समाज से निकल गई, एक साइकिल से निकल गई। अब क्या कहेंगे, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं कि आप ये सब बता रहे हैं क्या होता है, तो हमने कहा कि आप देख लीजिए पानी की चीज इंडोनी होती है, वो रखने की, मटका रखने की, हम वहाँ पे आपको तो उस पर वो हेल लेके जाती, तो उसके गीत में लेके हेल भरी है वो तो हाली उतावली, मारे है ये हरक न मारे घर मेहमान आए। मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर मेहमान आए। पानी गया करे बेनी हमें तड़ाव ना रे, पाड़े थी लट्टू पग, पेड़ा मारा नंदवारा में, तो पानी लेने गए थे, वहां से मेरा पग ये हुआ, तो मैं कैसे लेके जाऊँ? ये गीत है। अब एक एक चीज के 10 गीत मिलेंगे, 10 कहावतें मिलेगी, 10 उसकी कथा, वो खत्म हो गई। एग्जिबिट से एक रूटीन से निकल गया, एक चीज निकल गई। आप कोर्स ले लीजिए, जर्नी ले लीजिए, उसके साथ सब ये चला गया। तो आज क्या पानी के नाम पर आप ये कहेंगे कि मेरा प्यूरिफायर लेके मैं तो चली, या तो मेरे बिस्लरी बोतल से मेरा दिल नहीं भरा, या तो आज मेरे घर बहुत देर से न लाएंगे, गीत बनाएंगे नहीं। तो दैट इज थिंग, उनके पीछे एक है भावना है, तो चीज चली जाती है, उनका वो दुख नहीं होता है, लेकिन उनके पीछे का हमारी परंपरा टूट जाती है। नेक्स्ट, गर्मी हो रही है, प्लीज मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने बंद नहीं किया और मैंने इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं किया, आप थोड़ा सब्र कर लेना। नेक्स्ट, हाँ ये नवकुल नाग का पूरा है, ये हमारा नवकुल नाग का, जब नाग पंचमी आती है तब हमारे पास पानी का होता है, वहाँ रखा गया। बेसिकली क्या था कि जिस चीज से हमें डर लगा, जैसे आप वेद का लीजिए, पर्जन्य है, वरुण है, अग्नि है, तो जब जब आदि मानव उससे डरा तो उससे भगवान का स्वरूप बना दिया। ऐसे खेत खलिहानों में सांप निकलते थे कुछ न कुछ, तो जिसका डर लगा, जिसका विकल्प नहीं, जिसकी दवाई नहीं, आप स्मॉल पॉक्स का भी शीतला का भी देखें, तो जिसका डर लगा उसे हमने देवता बना लिया। एक दिन जैसे ये फॉरेनर्स लोग कहते हैं ना, आज फादर डे है, मदर डे है, और ये फ्रेंडशिप का वैलेंटाइन, ये सब है ना आपके, तो उसी तरह से
हमारी परंपरा में क्या नाग पंचमी है, शीतला सातम है, वो डिवोशन का दिन है। तो ये नाग पंचमी के दिन हर गाँव में हमारे गाँव होता है नेक्स्ट इस शीतला का है। नीचे आप देखिए पलना है। तो बच्चों को जब स्मॉल पॉक्स निकलता था तो ये उनके लिए वैक्सीन नहीं थी, तब से ये शीतला माता ये चला था। नेक्स्ट ये हमारा स्पेशल जो आप सीढ़ी देख रहे हैं वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक सिंबल है, जो गिरनार हमारे यहाँ गिरनार है जहाँ शीर एशियन लायन आप देखते हैं, तो वो सीढ़ी का वो जो यात्रा करके आते हैं तो उनके घर पर ये सीढ़ी का सिंबल रहा है। और ये आप तीन नीचे देख रहे हैं, दो एक ऊपर, ये जो है हेल्थ एंड वेल्थ ग्रोथ का है, ये ऐसे नहीं सिंबल का है। तो हेल्थ एंड वेल्थ, आपका हेल्थ एंड वेल्थ अच्छा रहे उसके लिए ये करना है। नेक्स्ट ये भी सिंबल है वही सिद्धा। नेक्स्ट ये मानना आपसे राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से। नेक्स्ट हाँ, ये डिफरेंट इलाके में दूसरे जनपद में इसी तरह से किया गया है। पीछे ब्लू शीट है उसका भी कर। ये हमारा सौराष्ट्र कच्छ आप देख रहे हैं, तो आप रिचनेस देख लीजिए कहाँ आपका वेलवेट कच्छ और ये काफ़ी एनिमल प्रिंट कहाँ देख पूरा का पूरा रो मटीरियल। देखिए आप किसी भी उड़ीसा का रीजन ले लीजिए, आसाम का, बंगाल का, किसी भी, तो डिपेंड नहीं रहे नहीं ये मेरे पास होगा तभी मैं घर सजाऊंगी, तभी मैं पूरा अपना ये कारोबार चलाऊंगी, ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, तो उनके पीछे एक ये था जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कहीं मिट्टी है, कहीं खड़ी है। चामुंडा गांव है जामनगर के पास, अवृक्ष से वो बनाते थे। उसके बारे में एक कवि ने हमारे कहा कि भीखू तमे केवी भागशाली गाय गरे से गोरा हाथवाड़ी। आपके लक कितने हावारी लकी, आपकी जो गोरी है जिसके हाथ गोरे हैं वो आपको ये गाय लगेगी वा लकी। तो इसके पीछे आप देखिए पूरा का पूरा ये सजा, वहाँ लाइट नहीं। हाँ, तो ये कहीं भी आप भूंगे में ले लीजिए, ऊपर घास है, तो ये डिजाइन ऐसे नहीं, ये गरीब लोग नहीं, इसके घर में 1-1 किलो सोना आज भी मिलेगा। ये गरीब नहीं, गरीब का घर नहीं है, क्योंकि डिजाइन एपी सेंटर आप जब कच्छ में देखते लोडाई जो हमारा है कच्छ, तो वहाँ एपी सेंटर धोलावीरा के थोड़ा नजदीक है। धोलावीरा हमारा हड़प्पा में जो चला, पाकिस्तान में हड़प्पा चला गया, तो धोलावीरा कैसे नष्ट हुआ, हमारा आर्कियोलॉजिकल पूरा साइट है, सिंध सभ्यता से भी आगे वाला है। क्यों चला गया, क्योंकि वो अर्थक्वेक जोन शुरू से रहा, तो बार बार अर्थक्वेक बना के दुनिया मिटाई जाती है, फिर भी जरूर इसमें कोई कमी पाई जाती है, बार बार भूकंप, बार बार मरना, बार बार। अभी हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो हमने 3-4 बार बोला कि जो वहाँ मुए जो डेरों का है वो बोले गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। मैंने कहा सब लोग ने आज तक किया, मेरा सही है प्रोनाउंसिएशन से आप ब्रेक न मारिए। तो आज तक आप बोले क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो, क्या मतलब होता है मोहनजोदड़ो का, क्या मतलब उनको तो आता नहीं था बोलना। मुए जो डेरो, जो लोग मर गए डट गए, डेरा सिंधी में वो टीले को डेरा बोलते हैं, जो मरे लोग हैं उसका डेरा है। मुए जो डेरो ना, मोहनजोदड़ो नहीं। तो आज तक ये गलतियां क्यों, तो ये एपी सेंटर हमारा कल से शुरू ही रहा। तो जो भूंगा आप बोलते हैं बाहर काम दिखाए, तो भूंगा का हाइट होता है ओरिजिनल भूंगा का 4 फीट, 4 फीट से ऊंचे नहीं जाता है, और 1.5 फीट उनका ये बेस होता है पाया, वो भी कच्ची मिट्टी का। अगर अर्थक्वेक आया वो लुढ़केगा नहीं, क्यों दबेगा नहीं, 4 फीट का कैसे वो लुढ़के। और ऊपर तो पूरा का पूरा ये बांस है और भी घास है, तो अगर वो गिर गया तो आदमी ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, मरेगा नहीं। इसीलिए कच्छ में हमारा भूंगा पेड़ है, आज तक भी उसमें रहने वाले सब लोग रीच है, कोई गरीब नहीं है। लेकिन ये हमने आधुनिकता में आज सीमेंट के भूंगे देखा, बाह्य देखा, आड़े दबी, तो ओरिजिनलिटी खत्म, अपने आधुनिकता के नाम पर हम कर रहे हैं। पूरा का पूरा बना दिया, वहाँ पूरा का पूरा एक लॉज बना दिया, ये बाहर के टूरिस्ट आते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं अपना। तो जब ये आप मिरर देख, मड मिरर और थ्रेड, जूडी फ्रेडर का एक बुक था, आप चला कच्छ के बारे में, तो मड मिरर और थ्रेड अब देख लीजिए, छोटे छोटे ये आप मिरर देख रहे हैं। तो जब पहली सूर्य किरण जब उसके घर में आती है, फिर वो आप देखेंगे कि वो माहौल क्या होता है, रिचनेस क्या होगी उनके कल्चर का, घर कितना हरा भरा रहता है। तो एस्थेटिक सेंस है ये चीज हम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट ये हमारे फ्रेंड का ये जहाँ हम रहे काफी ये होगा, जो आप शामी शरद देखते हैं, शामी शरद वहाँ जो ये
होता का पूरा ये जब ये हमारा कच्छ का फेस्टिवल चलता है वो वही मोड़का गाँव में है। नेक्स्ट ये भी वहीं का हम वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट तो ये आपका टेक्सटाइल का नजदीक जा रहे हैं वो हमारा सौराष्ट्र का। तो आप देख लीजिए ये नेकलेस क्या होता है आप देख लीजिए एडवांस है ना डिजाइन में। तो ये हमारा वहाँ गाँव में रंग दे रे जीवन की चुनरिया रंग दे रे तन तरंग दे मन उमंग दे रंग दे रे जीवन की चुनरिया। हमारे टेक्सटाइल आप देख लीजिए जिससे हमारे जीवन का रंग जो अधूरापन जहाँ से हमारे कलर कम होते हैं। राजस्थान में क्यों इतने भड़कीले कलर पहनते हैं लाल हरा पीला। तो जहाँ कमी है जीवन का जो अभाव है वो किसी ना किसी कलर से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए हमारी महल कम्युनिटी है। आपने वो गॉड मदर मूवी देखी होगी शायद वो शबाना आजमी की। तो उसमें इस कम्युनिटी से था महल कम्युनिटी बड़ी पावरफुल है पर्सन से। तो एक देख लीजिए टेक्सटाइल का अपना एक अलग नया रूप आपको मिलेगा एक सिंबॉलिक होगा। जिन्होंने जो कपड़े पहने हैं उससे उसकी आइडेंटिटी मिलेगी आपको। तो ये आप सफेद देख रहे हैं नीचे जो पहना हुआ है उसे जीमी बोलते हैं। इस तरह से बांध के वो रखने को। तो जिस लड़की की सगाई नहीं हुई है जिसका मंगनी नहीं हुई है तो आप उसका ये सफेद पहना हुआ होगा। जैसे ही उसकी शादी या मंगनी होगी तो फिर उसका कलर अपने आप ये पहनावा बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये रेड आ रहा है देखा। तो उसी लोगों का ये पहनावा आप देख लीजिए। अगर एक लड़का कवारा है आप भी कर सकते हैं शायद ये लड़के लोगों को बोल रहे हैं। तो उनके जो पहनावा है जैसे ये बुजुर्ग ने पहना है ना वो केड़िया बोलते हैं ऊपर केड़िया। तो उसके पीछे अगर शादी नहीं हुई है तो तब तक एक ब्लू कलर का एक टैग लगा हुआ था सगाई नहीं हुई। जैसे ही उनकी मंगनी और शादी हो गई तो उनका कलर गुलाबी हो जाएगा। देखिए प्रभाव आप भी कर सकते हैं क्योंकि कोई मंगनी नहीं हो तब तक ब्लू टैग रखिए। अगर हुआ होने के बाद मत रखना आप। तो ये हमारी परंपरा एक सिंबल ऐसा होता है एक कल्चर का एक सिंबल होता है। तो ये मैरिज कम्युनिटी का है। नेक्स्ट अच्छा ये टेक्सटाइल से जरा नजदीकी है ये बैग है। तो हमारा एक लास्ट 5 जून से हमारा जो एनवायरनमेंट डे होता है पर्यावरण दिवस होता है 5 जून से। तो उस दिन हमने सिर्फ बैग पर एक एग्जीबिशन किया था। 150 से ज्यादा बैग उस एग्जीबिशन में रखी गई थी डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स। हम कहना जा रहे थे कि प्लास्टिक जिसे आप एक ट्रांसपेरेंट चीज लेके घर में सब कुछ लाते हैं कहीं भी गए भाई चवला दो वो चीज सब्जी लिया बोले प्लास्टिक का बैग वो गए 1000 प्लास्टिक के बैग बराबर एक शादी हमारी परंपरा जो बुजुर्ग लोग हमारे घर यूज करते थे वो थी। उससे ज्यादा एक था कि जब आप प्लास्टिक से कोई चीज लाते हैं घर पर तो उसमें दरी लगा के बैग लिया था। उससे एक हम मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट ये बैग देख लीजिए आप डिफरेंट घर में वो आप देखते हैं कि आप महाभारत देख रहे हैं ना तो उसमें शकुनी वो पासे फेंकता है तो पासे रखने की अलग चीजें वो बैग थी। तेजा न भरने के लिए सुपारी लौंग तज जब डोगरी में बेटी को दिया जाता था या तो आजकल अलग हमें चाहिए तो यहाँ भी रखते हैं। फिर दूसरे की सोना मोर भरने के लिए अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बैग था। तो हर एक कल्चर में हर एक जनपद में अपने आप में एक बैग का महत्व था। फिर पोथी के लिए पुस्तक के लिए उसको ब्रिजिंग चाहिए। आज आप प्लास्टिक में कोई भी चीज रखेंगे कि कोई भी चीज दबा तो उसको ब्रिजिंग नहीं मिलेगा सांस नहीं मिलेगी उसको। तो कपड़े में कोई भी चीज रख रही है आज काफी कुछ आप आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग को बचाने के लिए काफी कुछ वैल्यूएबल पेंटिंग्स को बचाने के लिए वो कॉटन का ढकते उसका पूरा कवर प्योर कॉटन से करते हैं। तो ये चीज वो थी तो समझदारी के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया था उनका डिजाइन। तो पोथी के लिए भी आज आप देखिए मैन्युस्क्रिप्ट को भी इसी में सालों तक हम रखा करते थे। नेक्स्ट हाँ ये बैग दिया आपने तो इसमें हैंडल नहीं है ऊपर का वो नहीं आप नीचे पैटर्न देख लीजिए आप। तो आपने टाइटैनिक देखी होगी उसमें वो हीरो उसका मुंह बांध के स्टीमर की ओर दौड़ा जा रहा है देखा था याद आया कुछ। हाँ वो मुंह बांध के आप भागा जा रहा है मत देखा है तो यहाँ बोलना ऐसे तो वो बात आज भी कच्छ में चलती है इसे कोथड़ी बोलते हैं। ऊँट पर रखने की अलग होती है घोड़े पर रखने तो ये कोथड़ी आप डिजाइन देखिए और नीचे का जब ऊपर का कपड़ा फट जाता है तो वही पैटर्न दूसरे बैग में
लगा देते हैं। और दूसरा ये रहा, आज भी गांव में जाइए, हर एक महाराष्ट्र में जाइए, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा, आसाम में, तो बूढ़ी अम्मा, माँ, बुआ, तो उसकी एक छोटी सी बेग हमेशा रहता है, तो उसमें माला रहती थी और छोटा मोटा चोखा, गेहूं, बाजरी कुछ रखते थे। और मंदिर पर जाके वहाँ एक डिब्बा रहता था, उसी में वो सब गांव की ये माताएं सब डाल देती, उसी से पूरे गांव के पक्षियों की ये मिलती थी, उसको खाद्य मिल जाता था, उनको चौन मिलती थी। तो उसका देखिए आप, एक छोटी सी बैग से एनवायरनमेंट का कितना बड़ा मैसेज आता है। तो हमने क्या ये क्यों हमने गंवा दिया अपनी परंपरा। तो हम फिर अपने रूट्स की तरफ देखें कि क्या हमने जल्दबाजी में कुछ हमारा अच्छापन को खो नहीं किया। नेक्स्ट, आप टेक्सटाइल तरफ जा रहे हैं, बजेगा कि नहीं बजेगा भैया? कोई बजेगा नहीं बजेगा? ठीक है, हाँ बजेगा। हाँ तो नहीं, जल्दबाजी का एक पहला ही बजा दीजिए, जल्दी पूरा मूड बन जाए। कोई बात नहीं, अगर जल्दी बजाते हैं तो बजा दीजिए प्लीज, कभी इन्हें ना एक करवा दीजिए। तो ये हम अपने टेक्सटाइल की ओर जा रहे हैं, आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, तो ये साड़ी आप अलग अलग पैटर्न देख रहे हैं साड़ी की। नेक्स्ट, ये पगड़ी है, तो पागड़ियों 50 एमा 18 एके नहीं, ई घोड़ो नहीं अस्वाद, बीटे न भाड़ू मांगना। टर्बन, आप हेलमेट पहनेंगे, स्कूटर पर जाएंगे, तो ये हमारी परंपरा रहेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान में आज ये पगड़ी का एक महत्व है। पगड़ी के कलर्स होते हैं, जैसे आपने वो देखा बेटियों का पहनावा का एक कलर्स बदल गए हैं, तो उसी तरह से पगड़ी का एक महत्व था। पगड़ी में क्या होता था कि जिसके घर में, आज भी पुरुष लोग पगड़ी पहनते हैं हमारे यहाँ, तो जिसके घर में अगर बेटी बेवा है, बहन बेवा है, या तो अपनी उम्र से छोटे कोई भी बेवा है, तो उसकी पगड़ी का कलर बदल जाता है। कलरफुल, हरा, पीला, गुलाबी नहीं पहनते, उसे डार्क शेड आ जाएंगे, ब्लू, ब्राउनिश ऐसे सेट आ जाएंगे। तो आप देखिए कि रिचनेस हमारे कॉस्ट्यूम की कितनी थी, उसके पीछे की भावना क्या होती थी। नेक्स्ट, ये देखिए टर्बन के कलर्स चेंज हुए। नेक्स्ट, ये अभी आप देख रहे हैं प्रिंट पर, ये ब्लॉक प्रिंट्स पर जा रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम खत्री है कच्छ के, तो इन्होंने ये बनाए। नेक्स्ट, तो ये डिजाइन है हमारे बांधनी की, कच्छ, सौराष्ट्र और जामनगर में ये बांधने का डिजाइन हो रहा है। और इसे जो ये आप पैटर्न देखते हैं उसे लिगोड़ी छोटा बोलते हैं, ये लिगोड़ी छोटा का बांधने का है। हाँ नेक्स्ट, ये हमारा ये राजस्थान सौराष्ट्र में दोनों ये अभी भी उनका चलन राजपूत कम्युनिटी लेना चाह रहे हैं, चुनरी बोलते हैं इसे। तो ये चुनरी है, चुनरी के काफ़ी कुछ लिरिक्स होते हैं, काफ़ी कुछ उनके गीत होते हैं। तो ये चुनरी जब शादी ब्याह होता है तब ये बेटी को अपने मदर की ओर मिलता है ये, और दूसरा जो सफ़ेद पानी का होता है वो ससुर की ओर मिलता है। आज भी इनका यूज होता है, उनकी कलर्स ये देखिए, राजस्थान और सौराष्ट्र काफ़ी कुछ करीब करीब हमारा कल्चर है। नेक्स्ट, हाँ ये है बैंगन का, ये आपका बैंगन का पूरा ये रखने का, जो आप सब चूड़ियाँ पहनते हैं, और राजस्थान में जो लेकर का होता है चूड़ी, ये रखने का पूरा ये स्टैंड करने का बैंगन का, ये भी प्रिंट अपने आप में ये टेक्सटाइल हमारे उत्तर गुजरात में एम्ब्रॉयडरी आज भी बनती है, आज कुछ ये पॉपुलर है। नेक्स्ट, ये भी उत्तर गुजरात का है, वहाँ के जो चौधरी लोग हैं हमारे उत्तर गुजरात के चौधरी लोग आज भी ये इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये भी उत्तर गुजरात के चौधरियों का है। नेक्स्ट, ये भी उसी कम्युनिटी से। नेक्स्ट, ये हमारे पारसी लोग पहले आए, सबसे पहले आए गुजरात में, संजान बंदर पर आए। संजान, सूरत के पास जो संजान है वहीं से पारसी लोग आए, और पारसी लोगों के जो आर्टिकल गारा बोलते हैं, गारा साल होता है, तो उसका ये पैटर्न है, तो सब सूरत से हमारे म्यूजियम में सब चीज़ खूबसूरत से है। नेक्स्ट, ये भी उसी कम्युनिटी। नेक्स्ट, ये भी चारों के चारों मॉडल पारसी कम्युनिटी से है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आप एक हमारे यहाँ कवि कला में हुए, तो उसका ये म्यूजियम से लिया गया है।
गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, पूरा का पूरा आप यहाँ से ये देख रहे हैं। ये जैकेट है, बच्चों का है जैकेट है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट ये अलग अलग जो खतरी लोग अपना ये लोग प्रिंट्स को बना के इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउड्स। नेक्स्ट ये अपना टेबल क्लॉथ का एक नमूना है, ये केल्को म्यूजियम से, काफी कुछ पुराना है। और आप काम देखिए आर्य भरत होता है, आर्य भरत का सबसे प्राचीन ये नमूना है। नेक्स्ट ये भी आर्य भरत का कच्छ से, कच्छ में भाटिया कम्युनिटी हुआ होती है, वो भाटिया कम्युनिटी का है। नेक्स्ट ये भी भाटिया कम्युनिटी से। अब हम आपको ले जा रहे हैं उड़ीसा, और ये हमारा गुजरात का थोड़ा जो रिलेशन है, एक रिलेशन तो ये बनता है हमारा कि आपके जो जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती है उसकी, तो उसी तरह से उसके बाद सबसे बड़ी यात्रा हमारे अहमदाबाद में निकलती है। इसीलिए हम उड़ीसा और गुजरात का एक ये संबंध, दूसरा संबंध है हमारे इक्कत के साथ। हमारे यहाँ पटोरा बोलते हैं और आपका इक्कत, तो सबसे ये रिलेशन हमारा एक उड़ीसा के टेक्सटाइल से। तो ये बहुत ही प्राचीन है, रुद्रमहालय से बोलते हैं। सिद्धपुर में भगवान शिव का सोमनाथ से भी बड़ा मंदिर था रुद्रमाल, तो रुद्रमाल बनाया महाराजा सिद्धराज ने। हाँ, ये सिद्धराज जयसिंह है। तो जब रुद्रमाल बनाया गया था तब उनकी पूजा के लिए उनको डेली शिल्प की एक धोती और उनको वर्णी दोनों चाहिए, और उसका धर्मपत्नी थी चौला देवी, तो उनको इक्कत डेली उनको नया शिव पूजा के लिए सुबह में पहला प्रहर की जो पूजा होती थी तो उनको वो पहन के जाती थी पटोला। तो ये सिद्धराज जयसिंह काफ़ी कुछ ब्राह्मण को वहाँ बुलाया और उनको आमदनी दी, उनको खेती बाड़ी दी कि भाई आप ये सब, और पूरा एक बनाने में काफ़ी कुछ लोग चाहिए, तो काफ़ी कुछ क्राफ्ट में इक्कत के वहाँ और शिल्प के काफ़ी कुछ आज भी उनके परिवार में से कुछ है। तो देखिए एक टेक्सटाइल सिल्क पहले हमने थोड़ी बहुत ही आपको बताई, तो हमारे यहाँ पटोला का बहुत महत्व है। आज हम किसी को कहेंगे कि आप कितना भी रीच है, आपकी आमदनी, आपके सैलरी काफ़ी कुछ, आप क्या पहनेंगे, कितने का ड्रेस आएगा आपका, सबसे महंगा 1000 का, 2000 का, आपसे पूछ रहा हूँ कितने का आएगा, 5000 का आएगा, कितने का पहन सकते हैं आप? तो पुरखों की रिचनेस देखिए, आप परंपरा की रिचनेस देखिए, उनकी ताकत, हाथ दी रहे हम क्या। आज भी पुराना इक्कत हमारा ले लीजिए गुजरात का 50,000 केस देने के लिए आज ही क्या पहनेंगे। त्रिभुवन भीम जी आज कहाँ जा रहे हैं, पुराने ऑर्नामेंट की ओर आ रहे हैं, क्या लगा है सब फेक। तो ये मेहर कम्युनिटी देखी ना, वो सफेद पहना और लाल पहना वाला, आज भी उनकी औरत 100 तोले सोने का झुमरा पहनती है, पूरा 100 तोला होता है पूरा झुमरा। आप उनकी डिजाइन ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल का होगा, म्यूजियम पीस आज भी होता है। क्या मॉडर्न क्या कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे जैसे आधुनिक बन गए उसे परंपरा से हम हट गए, हमारे पास रहा सिर्फ ये हमारा ये नए बन में काफी कुछ हमने गवाया है। इसीलिए ये पाटन की जो खेला चीरे मारे हाटू पाटन की पटोला मोंघा लाओ, जो या तो कह रहे हैं कि जोई ने बोली है झाग फाटे पर फीटे नहीं, बड़े पटोरे भात ये फाटे पर फीटे नहीं। मित्र ऐसा बनाइए कि आपके साथ झगड़ा करेगा लेकिन आपका हित इच्छेगा। आपके जो फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड उसी को कहेंगे कि आपसे मन मुटाव होगा लेकिन वो वेल विशर होगा। उसी तरह से एक बार अगर पटोले में अगर डिजाइन बन गया वो फट जाएगा लेकिन फिटेगा नहीं। तो देखिए क्या रिचनेस कल्चर के, एक वैल्यूज दे दी, एक आदर्श दे दी, एक मूल्य दे दिया। तो ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे टेक्सटाइल के पीछे क्या क्या हमारे इमोशन है। नेक्स्ट हाँ ये पटोला आप देखिए। नेक्स्ट ये बांधनी जिसे बंधेज बांधनी बोलते हैं। मुस्लिम खत्री लोग जो बांधनी करते हैं सबसे ज्यादा अच्छा का मुस्लिम खत्रियों का। हम एक छोटी सी आपको बात बता दें कि जब अंग्रेज लोग थे, आप लगान देखा ना आमिर खान का, वो कच्छ में वहीं पूरे गाँव में बना था। तो उसी तरह वो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलता है लगान को, जो उनका हीरो है। तो उसी तरह से उस वक्त अंग्रेजों ने राव खेरा जी के वक्त इन कारीगरों पर टैक्स लगाया
कि भाई आप तो काफ़ी कुछ कमा लेते थे, कुछ राज को भी हुआ, तो उन्होंने ये लगा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो क्या करें, आमने सामने तो बोल नहीं सकते थे, अंग्रेज का पॉलिटिकल एजेंट राजकोट बैठा था, कैसे बात करें। तो फिर उसमें एक बूढ़ी औरत नाथी बाई थी जो बहुत ही फाइन वर्क करती थी अपने बांधड़ी में, तो उन्होंने मन ही मन किया कि हम कुछ इनका सॉल्यूशन लाएंगे। सब उनके पास गए, नाथी बाई ये क्या करें, हम पैसे दे नहीं सकते हम। तो उन्होंने एक बांधड़ी का एक पूरा सैंपल बनाया, इतना फाइन वर्क, इतना आप वो म्यूजियम पीस में आज भी है। तो उन्होंने वो बनाया और 22 स्टीमर जाते थे, तब विलायत बोलते थे, इंग्लैंड और विलायत, वहाँ जहाँ रानी विक्टोरिया बैठी थी, तो वो विलायत भाटिया जो सिंधिया डेलीगेशन है ना, वो भाटिया लोग बचते, तो उसी की स्टीमर में बैठ के वहाँ गई, वहाँ गिड़गिड़ाई। उसके बीच हम दूसरा भी आपको एक बात करते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है जो मैं कहानी कह रहा हूँ, उसके वो सत्य घटना है, इसीलिए कि अभी ही मैं घटना बना हूँ। हमारे बाड़े में तेजी बहन है, अब मर गई 2 साल पहले, तेजी बहन करते थे, तो आपका जो पिपली का वर्क है ना, उसी तरह वो कटाव काम किया करते थे, पेश वर्क किया करते थे। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोकुल जयकर उसे ले गई लंदन, वहाँ बैठे थे सबके क्राफ्टमैन ये वो थे, तब रानी खुद वो देखने के लिए आए थे, वहाँ पधारी थी वहाँ ये आपका फिल्म। तो उन्होंने देखा, इनके पास आए, उनका देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, आदमी लिया, उन्होंने देखा तो बहुत फाइन है, परिचित भी किया उन्होंने, क्या बहुत अच्छा सुंदर है। तो फिर अपने सेक्रेटरी से कहा कि इनका नाम और ये सब आप लिख लो, तो वो तो इंग्लिश में समझते नहीं, तो उन्होंने नाम ये लिख लिया, उनके जो ले आए थे स्पॉन्सर उनसे मिली थी और आ रहे थे कुछ, ठीक है। तो अभी ये प्रिंस चार्ल्स डायना के हस्बैंड जो है, तो उनका शादी नहीं हुआ था तब, तो उनका शादी था, तो उन्होंने ऑफिशियल रॉयल फैमिली की ओर से इनको इन्विटेशन भेजा, तेजी बहन को, एक गरीब हरिजन भाई बाड़े हमारा अमदावाद के किला, वहाँ उनको पूरा का पूरा इन्विटेशन मिला, रिटर्न टिकट बिजनेस क्लास की, और बाकी का जो खर्ची है कि आप ये एयरपोर्ट पर आएंगे, आप एक एस्कॉर्ट रहिए, आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, और वहाँ रिसीव करेंगे, स्टेशन आप पर रहेंगे। तो वो जब पोस्टमैन आया तो चौंका ना कि ये किसी ने इनके साथ खिलवाड़ जो बनावट की, सबने देखा नहीं ये तो बोले तेजी में ना अपने रानी को आमंत्रण आए हुए, तो बोले भैया हम गरीब लोगों को रानी गाँव में क्यों बोलेंगे, तो सबने कहा नहीं सही है, आपको जाना है, डेट फिक्स हो गई, शादी में गई, और वहाँ वो बना के ले गई थी नमूने अच्छे उनको दिया, प्रेजेंट किया। तो फिर ये पत्रकारों ने पूछा कि आप तो गई थी, आपको क्या दिया रहा है, बोले मुझे ये पूरा इतना खोबे भर के चांदी के रुपये, ये देखो मेरे पास है। एक क्राफ्ट आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, एक छोटी सी चीज अगर स्किल है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। उसी तरह वो कच्छ की नाथी बाई ने वो बनाया अपना नमूना और स्टीमर से गए, रानी को भेजा, कुछ अच्छे ऑफिसर थे तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया और दिया। रानी इतना खुश हुई, तो बोले रानी माँ खुश मत हुई, दुखासी आता उनका ट्रांसलेटर, उन्होंने कहा कि वो क्या कह रही है, तो बोले रानी माँ खुश मत हुई, ये जो आप डिजाइन दे रहे थे वो मेरे खून से बने, जो रेड कलर था वो नाथी बाई ने अपने खून से लिया था, अपना खून निकाल के रेड डिजाइन। तो क्यों, ये तो बहुत सुंदर, आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले आपके अंग्रेज ऑफिसर नाम पर टैक्स लगाया, हम आपने ये एफोर्ड नहीं कर सकते, हम क्या करें। तो रानी ने उसी वक्त तार किया पॉलिटिकल एजेंट पर, आप पागल हो गए, इतना अच्छा काम करें, उन पर टैक्स लगाते, आपको शर्म आनी चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। ये हमारे प्रधान आज भी नहीं सोचते हैं, हम आपको क्या करें, दिन ब दिन हम अपने रूट से भागे जा रहे थे। ये बांधड़ी उससे लगे, नेक्स्ट ये बांधड़ी उसका नमूना है, ये जयपुर में बनती, नेक्स्ट हाँ ये बढ़ ये लहरिया आ गया, राजस्थान का लहरिया, सौराष्ट्र में भी है, यहाँ भी है। हमारा लहरिया माँ लागी लोटा लोट, नड़दल मांगे लहरी उड़े पाए। आपके जैसी छोटी सी ननंद है, अपने भाभी से बोले कि भाई आप ये लेके आइए अपने बाप के यहाँ से डोरी में, तो आप ये लहरिया मुझे दे दो। हमारा लहरिया माँ लागे लोटा लोट, नड़दल मांगे लहरी उड़े पाए। तो बोले मैं नहीं दूँगी, मेरा लहरिया मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। बोले क्यों नहीं देंगे, तो बोले दादा दीधेल लेरी उड़े पाए, हमारी माता ने बांधेल वाड़ नड़दल मांगे लेरी। मेरे दादा लाए थे, मेरे ग्रैंड फादर आए थे, और जो आप ऑर्डर दे रहे हैं मेरी माँ ने महीनों तक उसे मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ननद है, छोटी बहन जैसे है, तो बार बार वो ना बोले। फिर कहती है कि सामने बरगड़िए नड़दल लेरी उड़े पाए, नड़दल लई अदीठड़ा थाव, नड़दल मांगे ले जाओ। आपका मुंह
कहीं ले जाओ जबरदस्त देना पड़ा, उन्होंने देते से ना, लेकिन ये इमोशन है। हाँ, ये आपके बेल बॉटम के, आपके टॉप्स के, इनके गीत नहीं बनेंगे, इनका ही लगाव नहीं होगा। यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति है, तो इमोशन खत्म हो गई है, अपनी परंपरा है, उसको समझना है, चाहे ना पहने आपकी वजह, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कितना वजन है हमारी परंपरा में। नेक्स्ट, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी, इसे ये अपना बोला है 4 घोड़े 4 डाबला रे भाई, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। नेक्स्ट, हाँ, ये चुनरी का दूसरा नमूना है। नेक्स्ट, ये पंजाब की ओर थोड़ा जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये फुलकारी करीब हम गुजरात में भी थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन प्योर पंजाब में फुलकारी। नेक्स्ट, ये फुलकारी। नेक्स्ट, फुलकारी का नमूना। नेक्स्ट, ये ट्रेड है, ये हमारे यहाँ बनती है, अमदावाद मुस्लिम लोगों की नाम होती है। नेक्स्ट, ये चटाई पूरा कपड़ा, ये फ्रेमवर्क चटाई बनाई जाती है। नेक्स्ट, ये भी उसी का नीचे पिछाड़ी की चटाई है। नेक्स्ट, ये सिर्फ रॉयल फैमिली में ये जो आरी वर्क करते हैं, इसलिए सिल्वर और गोल्डन तार से ये बनाए जाते हैं, तो रॉयल फैमिली इसको कहेंगे। नेक्स्ट, ये उत्तर गुजरात के जो जैसे वो चौधरी लोगों का देखा, ऐसे ही रवारी लोगों का है। नेक्स्ट, ये भी रॉयल फैमिली। ये भी रॉयल फैमिली। ये बॉर्डर, ये भाटिया जो बोले जैसे निर्मिशन वाले, जो भाटिया बहुत रीच होते थे, उनके काम एकदम फाइन वर्क होते थे, तो नीचे की बॉर्डर कागरे की बॉर्डर। नेक्स्ट, ये भी कागरे की बॉर्डर। नेक्स्ट, ये भी बॉर्डर। ये शॉल है, तो सिल्क का शॉल है, जो गुजोड़ी गए आप, इसमें गुजोड़ी गए, गुजोड़ी जाना है आपको, एक बार कश्मीर जाइए तो गुजोड़ी भी जाना है, आप गुजोड़ी जाना है, शॉल में ये भी नहीं। ये आर्य वर्ग का सबसे बढ़िया नमूना है, वो भी सबसे पुराना नमूना। नेक्स्ट, ये बांधनी फील आ गई। ये बांधनी पहनने के लिए लेडीज के लिए एक जामनगरी और जूनागढ़, वहाँ जो साफा बांधते हैं, साफा इस बांधनी से आज भी बनते हैं, आज भी बांधते हैं, ये साफा का बनते हैं। ये इकट्ठा है। ये एम्ब्रॉयडरी लोकल बनाते हैं, ये ब्लॉक प्रिंट के नमूने खतरी लोगों के। ये फुलकारी पंजाब के लोग होता है। ये भी फुलकारी, ये प्रिंट हमारे यहाँ पर बेथापुर करके गाँव है, गांधीनगर आप जाएंगे गवर्नमेंट कैपिटल, अब बीच में बेथापुर आए, तो ज़्यादातर वो ब्लॉक बनाने वाले रहते हैं, ये बेथापुर का प्रिंट है। ये भी बेथापुर से नहीं, सॉरी, ये साटी है हमारा, वो ब्लॉक के करीब होता है, ये कच्छ में, सिर्फ कच्छ में बनता है, और इनका जो ये लंबाई तो चाहे कि मिलेगी, चौड़ाई बहुत कम होगी, ये 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होती, और सिर्फ जो कापड़ा, जो बैगलेस आपने देखा कापड़ा बोलते हैं, लंबी पाइप ब्लाउज की सही, वो साटी इसी के लिए सूरज के रवारी, सूरज का आए और चारण कम के साथ साटी बहुत ठंडा होता है, गर्मी में घूमना चाहिए, अच्छा लगेगा, साटी कम, और 3-4 परिवार है, तो हाँ, ये पगड़ी का डिफरेंट है। ये जो आली फरज का नमूना कच्छ के रॉयल फैमिली से, राव मेहता जी के परिवार से हमको हमारा म्यूजियम को प्रेजेंट किया जाता है। ये आप देखिए कितना बारीक है, पूरा शेप पर, जहाँ से हम शुरू हुए गणेश जी को हम चाहे कि हमारी परंपरा को, हमारे ट्रेडिशन को आप बचाए रखें। लास्ट में हम श्रीमद् भागवत जी की बात करते हैं कि जब पृथ्वी का प्रलय हो रहा है, प्रलय किसी भी चीज़ का होता है, चाहे आर्ट का हो, क्राफ्ट का हो, टेक्सटाइल का हो, उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, बदलाव भी आते रहेंगे, इससे डरना नहीं, इससे भागना नहीं, उसके साथ रिदम मिलाना है। जब प्रलय की बात आए तो सत्यव्रत राजा ने मत्स्य अवतार, मत्स्य बड़े से मत्स्य आते भगवान ने मत्स्य रूप लिया है, तो सत्यव्रत राजा को कहा कि इस धरती पर जितने भी अनाज है, जितने भी बीज है, जितनी भी हरी भरी वसुंधरा के पौधे हैं, वो सब एक एक लेकर आप इस हमारे पहाड़ पर आ जाइए, हमारे शिव पर आ जाइए, हम ये सबको बचा लेंगे। शायद हम सत्यव्रत राजा को कहें कि हमारी परंपरा, हमारी क्राफ्ट करके एक नमूने लेके बैठ जाना, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारी टेक्सटाइल की, हमारी परंपरा की, हमारे एम्ब्रॉयडरी की। थैंक यू।
एक चीज हम बताना जो मुस्लिम भी भूल गए, आज भी भूल गए। अच्छा मुझे बताओ कुछ ये सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी आप बोल रहे हैं कि आप हम ये कैलाश खेर को सूफी ये आपका ये नसरत के बेटे क्या नाम राहत फतेह अली खान को बोलते हैं कि सूफी। सूफी का मुझे अर्थ कौन समझाएगा बताओ? वो व्याख्या नहीं चाहिए। सूफी ये है एक शब्द, वो तो उनका आप वो कर रहे हैं, खड़े होकर बताओ क्या? बोलिए बोलिए ना, खुल के बोलिए आप। डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है भगवान से। मुझे सूफी का मतलब चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो उनके बाद क्या होते हैं वो अलग चीज़ है, वो तो सब है। और कोई बताएगा डायरेक्ट कनेक्शन वो ठीक है, आपको मानता हूँ मैं, लेकिन सूफी माने क्या बताओ? वो बोलो जो भी मन में है, ऐसा कोई थोड़ी हम आपका ये कौन बनेगा करोड़पति है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बताइए सूफी का मतलब क्या? एनीबडी? लोग किया जाए, कोई बताओ, चांस दे देगा, बताओ सूफी का मतलब क्या? आप बोलते हैं राहत फतेह अली को सुनते हैं, मैंने सुनते हैं वो कान में लगा है, बताओ। अच्छा लगता है, जरूर अच्छा लगता होगा सुनने में, लेकिन सूफी क्या होता है? कोई बात ये देखा क्या क्या ब्लैक वुल से बना है, जो काला घेटा होता है, ब्लैक उसके वुल से बनाया जाता है, और ये रिचुअल से बहुत पवित्र चीज होती है। और सर पर ओढ़ते हैं और जो सूफ होता है काला ऊन, सूफ माने काला और पवित्र चीज होती है, ये जो पहनने वाले वो सूफी, समझो। और वो पूरे चरवाहे थे, गाय बकरी भैंस और पूरे कॉस्मिक एनर्जी में रहते थे, वो मंदिर में नहीं मानते, वो निराकार में पूरे प्रकृति के 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़े थे, धरती आकाश पृथ्वी पवन पानी, तो उनके साथ निराकार की जो प्रेयर करते थे, उनका पहनाव काला। आप टेक्सटाइल की गरिमा को समझते हैं? सूफी लोग जो ये इस हिसाब से सर के इमोशंस जुड़े हैं, शायद या शायद हम उसकी नाखून की बराबरी नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से बोलते हैं कक्कन में भगवान, यहाँ पे हाथ से लेके सर के बाल तक क्राफ्ट कनकन में भरा हुआ है। You can imagine the entire experience he has with the textiles. He has a great knowledge about the various craft aspects other than textiles also. Because I saw the products he has displayed in the JDCA. Okay, he has bought a response and a lot of things along with it. So it is not about a textile. Complete craft का जो खजीना है, वो सर के पास अगर किसी को समय मिले तो बैठ के जब सर बात करते हैं, एक एक चीज सुनने लायक, जिस हिसाब से कहानियों को पिरोया गया है और जहाँ पे कल्पना जब आई है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस जब आए हैं, तो वो एफर्ट्स के बाद इमोशंस आते हैं। इमोशंस विदाउट एफर्ट आ नहीं सकते हैं, तो ये एफर्ट से ही फिर वो संगीत वहाँ से निकलता है, इमोशंस निकलती है, भावनाएं निकलती है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए जिस हिसाब से सर क्राफ्ट के बारे में बोलते हैं, उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो मैं और एक बार सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे रिक्वेस्ट सुने और यहाँ पे आए, और आप सभी की तरफ से जो अपने जितने भी वर्ड्स, वैल्यूएबल वर्ड्स आपने सुने होंगे, आई थिंक यू कीप इट फॉर द लाइफ। और मुझे आशा है कि और मौका मिलेगा और हम दोबारा मिलेंगे। और आई रिक्वेस्ट परमेश्वर सर टू गिव स्मॉल
भावना का प्रतीक है और हमारा मतलब ये है कि ये अगर हम बात नहीं करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो रह जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए हमारा पहला इसमें हम कोई उपकार नहीं करें, हमारा कोई आना जाना वो नहीं, लेकिन जो हमारी परंपरा रही उपनिषदों के ऋषि जो आप जानते हो उनको शेयर करो, बांटो। कहीं ना कहीं तो ये रखना चाहिए, कहीं ना कहीं रहेगा तो वो दूसरे के साथ करेंगे। इसलिए हम आपका सबकी ओर से थैंक यू। Thank you very much. I'd like to thank everybody in the team, Akansha, Padmacharan, ma'am, and all the students who came here to make this